Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 4 English and we are doing last unit, unit number 21, extract from our novel, New Boy. And this is third lecture from this unit. In this lecture, we are going to learn the language part from this unit, which is the topics are past perfect, use of its and its. Okay, you will have to do some exercises in your notebook, so please open your English classwork notebook and prepare classwork page and write down the index properly. Open your English students book page number 118 where this topic begins, and pick your stationery in your hand. Your eraser and sharpener should be in front of you, and you will listen very carefully and attentively and do all the things as your classwork given to you in this lecture. Open page 118 from students book, language, past perfect. Okay, past perfect tense is used to express an action has completed in the past. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, उसे हम किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और ज़्यादातर ये वाला टेंस सिंपल पास्ट के साथ आता है, कंडीशन के साथ आता है, या मिक्स्ड सेंटेंस आता है कि ये होने से पहले ये हो गया। इस टाइप के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ आपके बुक पेज 118 में सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपली पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड हैं, और वी मेक द पास्ट परफेक्ट यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल एंड हेल्पिंग वर्ब हैड. Past participle means verb third form and the helping verb had. On page 118, here the exercise is given, which is complete these sentences with the past participle of the verb in the bracket. आपको यहाँ पे कुछ fill in the blanks given है, आपने इनको fill करना है past perfect के साथ. For example, the first sentence is he had dash no friends. अब आपको पता है कि had आ गया है, तो obviously has, have या had के साथ हम verb की third form ही use करेंगे, and the verb is make. So ये क्या बन जाएगा? He had made no friends. You will fill this blank with the word made. What is the third form of make? It is made. He had made no friends. Second is he had dash school, and the verb is enjoy. It will be filled as enjoyed. He had enjoyed school. Third sentence is his family has dash, his family had dash from Hyderabad. Move. What is the third form of move? It is moved. His family had moved from Hyderabad. Fourth is his father had dash a new job, and the verb is get. Tell me, what is the third form of verb get? It is got. His father had got a new job. His father had got a new job. Fifth is the adults had dash friendly, and the verb is seem. Seemed. The adults had seemed friendly. Sixth is when he had dash breakfast, he went out. ये उस टाइप का सेंटेंस है जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि मिक्स सेंटेंस अमूमन होते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए, जिसमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट मिक्स होता है कि ये होने से पहले ये हो गया. When he had finished breakfast, he went out. बाहर जाने से पहले उसने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया. तो जो एक्शन पास्ट से भी पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा. When he had finished breakfast, he went out. Okay, have you done this exercise on your book? That's good. Don't forget to write down things on book with the lead pencil. The simple past tense and the past perfect tense often have a different form. Simple past tense में कौन सी form होती है?
डिड आता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। Here description column is given. Simple past, past perfect, simple past and past perfect. For simple past the verb is I ran, और इसे past perfect में कैसे बनाएंगे, I had run. Simple past में verb की second form past form, और past perfect में verb की third form past participle form. I saw, I had seen. I spoke, I had spoken. I ate, I had eaten. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म्स यूज़ हुई हैं सिंपल पास्ट में डिफरेंट है और पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। I gave, I had given. I showed, I had shown. ओके, अब आपको अगर सिंपल पास्ट का कोई वर्ब गिवन हो, आपने उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना हो, कैन यू डू दैट? Of course you can do that. Okay. Book page 118. Exercise 2 is some of these sentences are in the simple past and some are in the past perfect. Complete them using the correct form of verb. अब आपने ये खुद से देखना है कि किन सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट आएगा और किन में पास्ट परफेक्ट आएगा। आपको ऑलरेडी पता है अगर किसी सेंटेंस में हैड आ गया तो इसका मतलब है वो पास्ट परफेक्ट है ना। अगर किसी सेंटेंस में हैड आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट है, उसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर किसी सेंटेंस में हैड नहीं है तो वो सिंपल पास्ट का होगा, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस इज उस्ताद डैश उस्मान एंड द वर्ब इज सी। यहाँ हैड है नहीं है, सो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड करेंगे, उस्ताद सॉ उस्मान। सेकेंड सेंटेंस इज वी हैड डैश द बॉयज़ इन द रोड। यहाँ पे हैड आ गया है तो इसका मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सी। वी हैड सीन द बॉयज़ इन द रोड। थर्ड सेंटेंस इज आई डैश देम द वे टू द पोस्ट ऑफिस। आई डैश शोड, यहाँ पे हैड नहीं आया सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, आई शोड देम द वे टू द पोस्ट ऑफिस। Fourth sentence is you had dash me a parcel to post. You had आ गया तो अब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। give की थर्ड फॉर्म क्या है, given. You had given me a parcel to post. He dash them all his marbles. यहाँ पे had आया है नहीं आया, सो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, he gave them all his marbles. Sentence 6 is we had not dash anything since breakfast. We had not. So eat की थर्ड फॉर्म आएगी, वो क्या है, eaten. We had not eaten anything since breakfast. Have you done this exercise on your book? That's good. Now come to book page 119 where the topic is for its and its. It apostrophe s its or its its. Its is always a contraction. Contraction का क्या मतलब है, शॉर्ट फॉर्म। किसकी शॉर्ट फॉर्म, इट इज या इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म, इट अपॉस्ट्रॉफी एस। जहाँ पे भी इट्स अपॉस्ट्रॉफी वाला आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये इट इज़ या इट हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। और जहाँ पे इट्स इट्स आएगा विदाउट एनी अपॉस्ट्रॉफी, इसका मतलब है कि ये पोजेशन है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ सीक्रेट, इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ सीक्रेट। अगर है इट्स बीन फन टुडे तो इसका मतलब है इट हैज़ बीन फन टुडे। हमें इट हैज़ कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे बीन यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म इसके साथ तो यूज़ नहीं होगी, इट हैज़ बीन फन टुडे। सो इट्स अपॉस्ट्रॉफी वाला कॉन्ट्रैक्शन है और इट्स विदाउट अपॉस्ट्रॉफी क्या है, शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग और समथिंग बिलोंग्स टू समवन, पोजेशन जो शो करता है। इट हैज़ नो अपॉस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल द कैट वॉश्ड इट्स ईयर्स, कैट ने अपने ईयर्स वॉश किए, तो ये पोजेशन है ना, सो यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रॉफी वाला इट्स यूज़ नहीं किया, ITS इट्स।
On book page 119, we have an exercise for the same, which is which sentences need an apostrophe? Write out these sentences correctly. ओके हमने ये देखना है कि किन सेंटेंसेस में अपॉस्ट्रॉफी आएगा और किन में नहीं आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? जहाँ पे इट्स या इट हैज़ आना चाहिए वहाँ अपॉस्ट्रॉफी आएगा, जहाँ पे इट्स, इट इज़ और इट हैज़ नहीं आना चाहिए बल्कि कोई पोजेशन है तो वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज़ इट्स टाइम टू गो। इसका क्या मतलब है? इट इज़ टाइम टू गो। इट इज़, ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, सो वी विल ऐड अपॉस्ट्रॉफी हियर. You will do this on your book. Add an apostrophe. Second sentence is the bird lost its feathers. परिंदे ने अपने feathers खो दिए. अब ये its जो है ये possession वाला है कि bird ने अपने feathers. Possession के साथ हम apostrophe नहीं add करते. Third is it's only 3 o'clock. यहाँ पे it's इट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज़ ओनली 3 o'clock, सो यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी ऐड करेंगे. फोर्थ वन इज़ द टेबल वॉज ऑन इट्स साइड. टेबल वॉज ऑन इट्स साइड, ये पोजेशन वाला इट्स है, सो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे. फिफ्थ वन इज़ डू यू थिंक इट्स कुक्ड येट. ये इट्स क्या है? इट हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन है. डू यू थिंक इट हैज़ कुक्ड येट, सो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी ऐड करेंगे. सिक्स्थ वन इज़ द पेन इज़ इन इट्स बॉक्स. ये पोजेशन वाला इट्स है, सो यहाँ पे अगेन हम अपॉस्ट्रॉफी ऐड नहीं करेंगे. सेंटेंस 1, सेंटेंस 3 और सेंटेंस 5 इनमें अपॉस्ट्रॉफी ऐड करेंगे. लेड पेंसिल के साथ आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे. Now it's time for homework. Open your diary, write down date. I hope that you already have written your date. So subject is English, and then note down your homework, which is learn about past perfect tense and difference between its and its. आप ये लेक्चर अगेन सुनेंगे गौर से, अच्छे से, और सारी बातों को अच्छे से लर्न कर लेंगे. Then you will open your workbook and do page number 82, question number 3. From workbook page number 82, you will do question number 3. Good luck dear students. Allah Hafiz.